Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक निकाल लीजिए सारे लोग। निकाल लिया? सभी ने बुक निकाल लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा Yes, चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कोई बताएंगे? Ma'am. Chapter 13. I'm 13. चैप्टर 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल हम लोग क्या किस पे खत्म किए थे, बताएंगे? Ma'am, society. Ma'am, society. Society. सोसाइटी पे कुछ आप लोग बोलेंगे? सोसाइटी पे कुछ हमको बताएंगे आप लोग? मैम सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइडेड थी, हिंदूज और मुस्लिम। और मैम मुस्लिम अच्छे लाइफ। कौन बोल रहे हैं? हु इज स्पीकिंग? मैम उदित कौन बोल राज। रहे हैं? हाँ, तो उदित राज हमेशा ही आप ही नहीं बोला करिए, दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने के। ये देखते हैं हमेशा आप बोलने लगते हैं। यू डू नॉट गिव अदर ए चांस। अभी बोल दीजिए, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए बताइए, बोलिए उदित राज। Ma'am, society was divided into 2 classes, Hindus and Muslim. Muslim were living a prosperous life, and the life of Hindus were miserable. They have to वही पढ़ के बुक वाला लाइन नहीं बोलो, खुद भी कुछ No, मैम बोलो। बुक वाला नहीं बोल रहे। हमको तो बुक से ही लग रहा है कि तुम बोल रहे हो। नो मैम, खुद से बोल रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन लाइन तुम्हारा पूरा बुक से मिल रहा है, ऐसा तुमको नहीं लग रहा है? बताओ बताओ, मैम और बोलो। मैम कल बुक रीड किए थे मैम, इसलिए मैम थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। The Muslim was divided into two castes, Shia and Sunni. And ma'am, and the Indian society was Islamic. ठीक है, ओके Ma'am, can I? ओके ओके उदित राज, लेट अदर। हाँ बोलिए। Yes, ma'am. Ma'am, there were many Muslim rulers during this time. The society was divided into Hindu and Muslim. There were two sects of Muslims, Shia and Sunni. The women were not in good condition. The Hindus were also not in good condition. Many Muslims marry more than one, have more than one wife, and but the widow were allowed to remarry. But in the Hindu caste, yes, ma'am. The widow were allowed to remarried in which religion? Ma'am, in Muslims. ठीक है, चलिए आगे बोलिए। Ma'am, but in Hindus, they were not, the widows were not allowed to remarry. ओके चलिए नेक्स्ट। और कौन बोलना चाहते हैं? और कोई है जो बोलना चाहते हैं? और anyone else who want to speak? Ma'am, Sanvi Sharma. बोलिए शानवी शर्मा, बोलिए। The Indian society was bifurcated into two classes that were Hindus and Muslims. The Muslims were also divided as Sunni and Shia. The condition of the Hindus was not very good, as all the rulers during the Sultanate period were Muslims, and they discriminated with the Hindus. The condition of the woman was also not good, as in Muslims the widows were allowed to remarry, and the kings and the sultans had more than one wife,
And in Hindu religion, the widows were not allowed to remarry, and child marriage had also started. Okay, good. और कोई बोलेंगे? Anyone else who want to speak? कोई और है जो बोलना चाहते हैं? उदित राज ने बोला, सानवी शर्मा ने बोला, एक और किसने बोला? मैम अनिका। अनिका। और कोई है? Anyone else who want to speak? Anyone else who want to speak? Board is visible to you all or not, children? Board आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? Ma'am, the board is Yes, or no? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the topic? society, economy, religion, language, Society, economy, religion, language, and literature, architecture. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इट इज गुड, इट इज वेरी गुड. आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं बोर्ड पे, बहुत अच्छा है. नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आप लोग मतलब एक चीज तो हम फील करते हैं, दैट आई फील, बहुत सारे बच्चे जो हैं दे डोंट वांट टू गिव मी द आंसर. 2 ही 3 बच्चे हैं. बॉयज में उदित राज हमेशा जवाब देता है, विवेक वर्मा भी बोलता है, और बस 2 ही 3 बच्चे. और तुम इवन 7A के बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ जो पहले पढ़ते भी थे. पीयूष राज कुछ नहीं, प्रत्युष, सॉरी प्रत्युष कुछ भी नहीं बोलता है. अपराजिता बोलती है. उसके बाद जो है फिर प्रत्युष के बाद है चिन्मय. कभी आज तक उसका हम चेहरा भी नहीं देखे. चिन्मय का आता है क्लास में, बट आई हैव नॉट सीन हिज फेस. चिन्मय, अभी चिन्मय को हम देख पा रहे हैं. But Chinmay, you do not speak anything. You do not give me any answer. You are just attending the classes. Balaji, never give me the answer. वीडियो को ऑन करके रखिए, जो पढ़ाया जाए उसको घर में पढ़िए, और जब समय आए, जब whenever I ask the question, give me the answer. That is the good thing. अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं रहता है, चेहरा ही नहीं दिखता है कि बच्चा खुद क्लास कर रहा है या क्लास लगा के कहीं घूम रहा है, पता ही नहीं चलता है. There are 40 participants are in the class, but most of them you have आपका कैमरा ऑन नहीं. आप लोग को वेटिंग रूम में भी डाल दो तो आप लोग पे कोई असर नहीं पड़ता है. तो आई डोंट थिंक इन दिस इज गुड. यस्टरडे के क्लास में शशांक शेखर, परहैप्स शशांक शेखर, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था परगना को बताने के लिए. डू यू नो पेज नंबर 104 का इडर डिस्ट्रिक्ट जिला है वेस्ट बंगाल का, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है 24 परगना. ये आज भी है. दिस इज स्टिल इन वेस्ट बंगाल में है. देयर आर 24 परगना इन अ डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट में 24 परगना है. तो एक परगना में क्या है, उसमें 84 और 100 विलेज है. एक परगना में 84 और 100, 24 में आप समझ लीजिए कितने विलेज हैं. मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 से, पता आपको चल जाएगा कि कितने विलेजेस उसमें हैं. 24 परगना में कितने विलेजेस हैं. Now we will start the chapter from the economy. Most of the people were engaged in agriculture, which were dependent on rain. मतलब ज्यादातर लोग क्या करते थे, खेती पर डिपेंड थे, खेती करते थे. और खेती किस चीज पर डिपेंड था, बारिश पर, रेन पर. However, canals and well were also used for irrigation. कैनल और वेल भी यूज होते थे. किस लिए, इरिगेशन के लिए, मतलब खेती में पानी देने के लिए, खेत में पानी देने के लिए. Again, but used for Firoz Tughlaq constructed many canals that proved helpful to agriculture. फिरोज तुगलक ने बहुत सारा, उसने आप लोग पढ़ चुके हैं, उसने रिपेयर कराया था बहुत सारा. ये जो है क्या कहते हैं, टैंक और इसको, तो इसलिए बहुत सारा ये कह रहा है. बट द फार्मर्स लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी. लेकिन जो किसान थे बहुत ही गरीबी का जीवन बिताते थे. अब क्यों बिताते थे, वाई? द मेन इंडस्ट्री जो है, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन था, और जो हिंदू किसान थे वो जजिया टैक्स भी उनसे लिया जाता था. तो ऑल दीज थिंग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स. द मेन इंडस्ट्रीज वर स्पिनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन. मतलब उस समय भी लोग इंडस्ट्री का काम करते थे घर में. तो उसमें क्या क्या था, स्पिनिंग, वीविंग, मतलब पहले धागा काटना, सूत काटना, उसके बाद कपड़ा बुनना, शुगर प्रोडक्शन, और उसके बाद जो है हैंडीक्राफ्ट, पोएट्री एंड ज्वेलरी मेकिंग. Some of the sultans
पैट्रोनाइज आर्ट एंड क्राफ्ट को, कुछ सुल्तान जो है आर्ट और क्राफ्ट को भी बढ़ावा देते थे। दे हैड देयर ओन कारखाना वेयर ऑल द फैंसी एंड लग्जरी गुड्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द रॉयल फैमिली। अब कहते हैं उन लोगों के पास अपना कारखाना भी था, जहाँ की मैम कारखाना मतलब जहाँ पे काम मतलब सामान बनाया जाता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री समझ में आता है आप लोगों को? यस मैम। तो ये हाँ, तो ये जो है ना उर्दू वर्ड है कारखाना, जहाँ पे काम किया जाता है, मतलब सामान बनाने का जो काम होता है वो कारखाना कहलाता है। ये जो है ठीक है। तो कुछ सुल्तानों का अपना कारखाना था। जैसे आप लोग इसके पहले जो वाले पेज में जो पढ़े हैं ना, ये वाला लाइन जो है वकील डार, पेज नंबर 103 में देखिए लास्ट वाला जो है, he looked after the personal comfort of the sultan and family. He also looked after कारखानाs where produced goods were required by the royal family and maintained proper record. समझ में आया? कारखाना जहाँ मतलब जहाँ राजा के जरूरत का सामान बनता था और उसका रिकॉर्ड भी वो लोग रखते थे। तो ये हो गया, मतलब कारखाना का मतलब जहाँ पे सामान बनता था यूज का। ठीक है, नेक्स्ट इज अब कहता है कुछ उन कारखाना वेयर ऑल द फैंसी एंड लग्जरी गुड्स वेयर मैन्युफैक्चर फॉर द रॉयल फैमिली के लिए, राजा के परिवार के लिए सिर्फ बनता था, सबके लिए नहीं बनता था। इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड व्हिच वाज कैरीड ऑन बोथ बाय सी एंड बाय लैंड। अब कहता है इंडिया के पास एक मतलब बहुत अच्छा बढ़ा हुआ इंटरनल और फॉरेन ट्रेड था, मतलब व्यापार था, विदेश व्यापार था, जो कि लैंड और सी दोनों तरह से होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड राइस, स्पाइसेज, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क एंड सैंडलवुड एंड इंपोर्टेड हॉर्सेज। क्या क्या भेजता था इंडिया? राइस, स्पाइस मसाला, इंडिगो डाई करने के लिए, और सैंडलवुड मतलब लकड़ी का, मतलब चंदन का लकड़ी, सैंडलवुड, दैट इज नोन एज द सैंडलवुड एंड इंपोर्टेड हॉर्सेज मतलब घोड़ा। क्या क्या मंगाता था बाहर से? घोड़ा, वाइन, हाई ग्रेड टेक्सटाइल मतलब बहुत बढ़िया कपड़ा, ग्लासवेयर शीशा का बर्तन सब, रॉ सिल्क एटसेट्रा मंगवाता था बाहर से। रिलीजन, अब इसमें कौन सा रिलीजन लोग मानते थे? ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुइज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन, क्योंकि ये तो हिंदू, इसका नाम ही, कंट्री का नाम हिंदुस्तान, हिंदू यहाँ रहते थे, तो हिंदू ज्यादा थे। इट वाज फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग जो इंडियन थे वो तो फॉलो में मतलब क्या कहिएगा कि हिंदू धर्म को ही फॉलो करते थे। द हिंदूज फॉलोड वैष्णविज्म एंड शैविज्म। हिंदू लोग ज्यादातर या तो विष्णु भगवान को मानते थे या शिव भगवान को मानते थे। वैष्णविज्म एंड शैविज्म का मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले, शैविज्म मतलब शिव भगवान को मानने वाले। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर आल्सो प्रैक्टिस बाय द पीपल। और दो धर्म और थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी थे, लोग इनको मतलब करते थे। इस्लाम वाज मेनली ब्रॉट टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लोग, समझ में आ गया ना? मीनिंग ऑफ द मेजॉरिटी ज्यादातर लोग। इसका कहता है कि अब इस्लाम धर्म इंडिया में, तो ये तो पहले ही आप लोग लेसन 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें लिखा था कि मोहम्मद गजनी और गोरी ही इस्लाम धर्म को इंडिया में ले आए थे, इसके पहले इस्लाम धर्म नहीं था। दे बिलीव इन वन गॉड। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग एक भगवान को मानते हैं। वेयर एज हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड, जबकि हिंदू लोग बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं। वेयर एज हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड। Sufism and Bhakti movements also started during this period. अब कहता है भक्ति मूवमेंट ऑफ सूफिज्म भी इस पीरियड में स्टार्ट हुआ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड खड़ी बोली एंड ब्रज भाषा बिकेम द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। अब जब दो तरह का भाषा बोल रहे लोग, एक खड़ी बोली, मतलब अब इन्हें कोई पूछेगा हमसे खड़ी बोली क्या था, तो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ा सकते हैं, थोड़ा हमको पता है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जो है वो भी मतलब उस समय जिसमें सूरदास ने जो लिखा है वो ब्रज भाषा। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस तरह से जो वो ब्रज भाषा खड़ी बोली। तो इसी तरह का कबीर और ये लोग इस तरह का उस समय का लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे। तो वो भाषा जो है उसमें जो है लिखाता था। ऑन द अदर हैंड द मुस्लिम यूज अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक इन देयर कोर्ट। और कोर्ट मतलब अपने मतलब दरबार में, कोर्ट का मतलब दरबार यहाँ पे समझ लीजिएगा, मतलब मुस्लिम तो राजा थे, रूलर क्लास थे, तो अपने दरबार में। अब वो लोग जो है पर्शियन और अरेबिक, क्योंकि यही उनका भाषा था। द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस टाइम। अब कहता है हिस्टोरिकल लिटरेचर का मतलब उसी समय जो इंट्रोड्यूस किया वो ये बहुत बड़ा ये था इस समय, मतलब हिस्ट्री के बारे में लिखना। लेसन 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रेवल अकाउंट लिखाया, राजा लोग जो सुल्तान लोग लिखवाते थे, इसी को कह रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर।
बरानी, जियाउद्दीन बरानी, द फेमस हिस्टोरियन, रोट तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह के समय में उसने लिखा था तारीख फिरोज शाही। आमिर खुसरो was the well known literary genius. Yes, yes, विवेक वर्मा, what is your question? Yes, विवेक। मैम आपकी आवाज बहुत रुक के आ रही है, कभी कभी बीच में। यस कभी मैम। कभी बीच में। अब आ रही है? नो मैम। मैम आपकी आवाज क्लियर है? नो मैम। मैम आपकी आवाज एकदम क्लियर रेगुलरली आ रही है। आ रही है, ओके। तो कहीं कहीं कभी कभी विवेक, कभी कभी अपना भी ऑडियो गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए अगर किसी बच्चे को सुनाई भी दे रहा है, नहीं भी दे रहा है, तो हम ऐसे आप लोग को जिनको थोड़ा दिक्कत होगा तो थोड़ा कभी कभी आप लोग YouTube भी देख लीजिए, तब दो चीज समझ में आएगा। क्योंकि 7 का YouTube व्यू भी बहुत कम रहता है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैडम का ऑडियो खराब था कि मेरा ऑडियो खराब था। एक ये तो जरूर पता चल जाएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, तो कभी कभी यस, हाँ उसको सुन, हाँ तो थोड़ा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ मैम का रहता है कि मेरा गड़बड़। अगर जिसके तरफ से भी रहेगा तो उसको फिर से हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है, गड़बड़ कहीं से भी हो सकती है, आपके तरफ से भी हो सकती है, मेरी तरफ से भी हो सकती है। तो वी शुड, हम लोग को कैसा करना है कि एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखना है। तो कांटेक्ट बनाए रखने के लिए जो भी कमी हो उसको दूर करना है। इज इट ओके? लगे कि हाँ तो हमको बताइए, शेयर करिए। लेकिन यूट्यूब वीडियो भी जिनको लगातार दिक्कत हो रहा है वो यूट्यूब वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको क्लियर होगा कि आवाज, हाँ आवाज वही बता रहे हैं ना, आवाज किधर से गड़बड़ हो रही है, मेरे तरफ से आपके तरफ से। ओके, नेक्स्ट है हाँ तारिक ए फिरोज शाही, आमिर। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने भी हाँ बोलिए। खड़ी बोली के बारे में सर्च किया तो मैम दिखा हाँ हम कढ़ी अंडा, खड़ी बोली और द दिल्ली डायलेक्ट, the several central Indo-Aryan dialects spoken in and around Delhi. It is believed to have initially developed contemporaneously with the neighboring Awadhi, Bhojpuri and Braj dialect in the मिला करके, हाँ सारा जो उधर का भाषा सबको मिला करके, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज खड़ी बोली, यही है मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। जो सराउंडिंग में सारे लोग जो बोलते थे होंगे, अवध के, लखनऊ के, सब मिला करके जो हुआ वो खड़ी बोली हो गया, ठीक है? अभी दिल्ली उल्ली वाले लोग जिस तरह से बोलते हैं सारा लैंग्वेज मिक्स करके, दैट इज द खड़ी बोली। उसके बाद कहता है आमिर खुसरो was the well known literary genius of this period. He was not only an outstanding poet but also a music composer and a historian. आमिर खुसरो के बारे में, this is about the आमिर खुसरो. The local languages like Bengali and Gujarati were used in many parts of Sultanate. सल्तनत के बहुत सारे देखिए लोकल लैंग्वेज, बंगाली एंड गुजराती भी लोग बोलते थे। भक्ति एंड सूफी संत यूज लोकल लैंग्वेजेज फॉर देयर प्रीचिंग। अब भक्ति संत और सूफी संत जो है लोकल लैंग्वेज में बोलते थे। कि क्यों बोलते थे लोकल लैंग्वेज में? कोई हमको बताएगा लोकल लैंग्वेज में वो लोग क्यों बोलते थे? बताइए मैम। ताकि उनका जो मोटिव है मैम सब लोग समझ सके। यस, ताकि सब लोग समझ सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। The Urdu was also developed during this period, which was the mixture of Turkish and Hindi. मतलब देखिए ये भी लोग भी मिक्सचर लैंग्वेज बोलते थे, जो टर्किश और हिंदी का मिला जुला भाषा था। Many Indian classics were also translated in Persian, Turkish and other languages. बहुत सारा इंडियन क्लासिक का मतलब होता है मतलब स्टोरी बुक्स। किसी के यहाँ से गाने की आवाज आ रही है, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। किसी के घर से गाने की आवाज आ रही है, यस म्यूट योर माइक। जिनके घर से भी हो रही है, ये गलत है। घर की आवाज मैडम को सुनाना, या ठीक है घर वालों का भी अपना एक रूटीन होता है। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर हाउस होल्ड रूटीन, बट यू शुड केयर फॉर दिस, यू शुड केयर फॉर दिस। ज्यादातर बच्चा अपना कैमरा भी नहीं ऑन करता है, कुछ नहीं करता है, बस खाली बैठा रहेगा क्लास में। 4-5 बच्चा है जो आंसर देता है। Many Indian classics were also translated in Persian, Turkish and other languages. अब हम I want to know about, कोई भी बच्चा हमको बोलेगा आमिर खुसरो के बारे में बोलिए, आमिर खुसरो के बारे में बोलिए। Say something about आमिर खुसरो।
जो बच्चे फर्स्ट पेज में आंसर दिए थे वो अगर थोड़ा देर वेट कर लेंगे, जो बच्चे नहीं दिए थे वो बोलेंगे। अमीर खुसरो के बारे में। हाँ बोलिए कोई। मैम यस हेलो हाँ हेलो। मैम कैन आई हाँ बोलिए, जो भी बोल रहे हैं पहले अपना नेम भी बोलिए और उसके बाद बोलिए जरूर। यस मैम हाँ आमिर खुसरो the famous historian who wrote Tariq-e-Firoz. He was a well-known literary genius of this period. He was an outstanding poet and music composer and a historian. नेक्स्ट कौन बोलेंगे? Ma'am, can I say? Ma'am, can I say? यस बोलिए। Sumita Sharma. यस बोलिए स्मिता सर। Amir Khusro was a well-known literary genius of this period. He was a music historian and an outstanding poet. यस और कौन बोलेंगे? Ma'am, can I say Soumya? यस सौम्या बोलिए। बोलिए सौम्या। आवाज आ रहा है। अच्छा सौम्या बोलिए। सौम्या यस आई एम वेटिंग फॉर यू। बोलिए सौम्या। बोलिए। Ma'am, can I say answer? यस 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 आई एम जस्ट वेटिंग, आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए। Amir Khusro was a well-known literary genius of that period. He was an outstanding poet and also a music composer and historian. नेक्स्ट कोई बोलेंगे अमीर खुसरो पर? Ma'am, can I say? दो ही थी। Ma'am, can I say Ravi Shankar? Ma'am, can I say Shashank Shekhar? Amir Khusro was a famous poet, writer. Musicians who lived under the Delhi Sultanate. Amir Khusro was a well-known literary genius of this period. He was not only an outstanding poet but also music composer and historian. Amir Khusro is also who lived under the Delhi Sultanate. Amir Khusro was a famous poet, writer, musician, and inventor during the period of medieval India. Amir Khusro was a Amir Khusro was a okay children great genius of literature of this period. He was not only an understanding poet, but he also a music composer and historian. He say his word in local language. गुड नाउ बहुत बढ़िया। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कौन बोल रहे थे? हु वाज देयर? मैम सानवी। आर्ट बोलिए शानवी। Amir Khusro was a well-known poet, music composer, and historian of the Sultanate period. His full name was Hasan Yamin Uddin Khusro, but he was better called Amir Khusro. He was a great example of art and literature of the Sultanate period and of Indian subcontinent. मैम वो बच्चा को म्यूट करवाइए, गाना बज रहा है उसके घर में। किसके घर से भाई? देख लो जरा, सानवी शर्मा के ही घर से हो रहा है और हर्षित मिश्रा।
दो ही लोगों का माइक ऑन है, बाकी सबका माइक बंद है। माइक भी बंद है, वीडियो भी बंद है। Nisha Kumari, you are the host. Nisha Kumari, you are the host. Now, the art and architecture. Art and architecture कहते हैं जो मतलब बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह, उसमें किस तरह का ये यूज करते हैं, उसी को मतलब कलाकारी कौन सी होती है, दैट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आप मुस्लिम लोग भी आ गए थे तो वो थोड़ा बहुत अपना भी कलाकारी उसमें लगा रहे थे, दैट इज द ये। हाँ, तो ड्यूरिंग सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, a new style of architecture developed with the help of Indian craftsmen। कहता है कि इंडियन क्राफ्टमैन मतलब कारीगर कहाँ के थे, इंडिया के। और मतलब जो राजा थे वो लोग तो बाहर के थे, इस्लामिक थे, तो लेकिन नया तरह का उनका आइडिया उन लोगों ने दिया। दिस इज नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर इसका नाम था। इट इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द मॉन्यूमेंट ऑफ दैट पीरियड। अब कहता है इसका असर जो है उस समय का जो मॉन्यूमेंट हम लोग देखेंगे, मॉन्यूमेंट मतलब जो बिल्डिंग बना है उसको देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। मॉन्यूमेंट जैसे मान लीजिए कि उस समय का जो भी आप लोग देखिएगा, गोल गोल ऊपर से जैसे लगता है कटोरा उलट के रख दिया गया है, तो उसको गुम्बद कहते हैं, और मतलब डिफरेंट टाइप का। और हम लोग के तरह का जो मतलब बनता है, जब साउथ का जो सब टेम्पल देखिएगा तो वो इंडियन स्टाइल का अपना हुआ, और इधर का जो है देखिएगा सब में उस तरह का। जैसे देखिए अभी अलाई दरवाजा आप लोग के सामने दिया हुआ है, एक तो लंबा सा है, और अलाई दरवाजा का देखिए दरवाजा जो है एकदम आर्क शेप का है जिससे अंदर जाने का, और उसके ऊपर भी देखिए उसी तरह लगता है कटोरा उलट करके रखा हुआ है। तो दिस वाज द स्पेशल, वो इंडो इस्लामिक कल्चर का ये था, मतलब इफेक्ट था। The earliest examples of this architecture are the Qutub Masjid, कुतुबी मस्जिद, क्वातुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली। They were constructed by Qutbuddin Aibak, the first Sultan of Delhi Sultanate. He died quite early, so Qutub Minar was completed by Iltutmish। मतलब कुतुब मीनार को तो शुरू तो कर दिया था लेकिन बहुत पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश जो था उसने इसको कंप्लीट कराया। अलाउद्दीन खलजी एक्सटेंडेड द क्वैतुल इस्लाम मॉस्क, मतलब अलाउद्दीन खलजी बड़ा बना दिया। क्वैतुल इस्लाम मॉस्क भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, लेकिन उसने उसको और बड़ा बना दिया। एंड बिल्ट अलाई दरवाजा नियर, मतलब देखिए मॉस्क बगल में, इसके बगल में अलाई दरवाजा बनवा दिया, मतलब बगल में जो खड़ा है लंबा सा एक बिल्डिंग अलाई दरवाजा के पास, तो वो पीछे वाला, तो वो जो है दिस इज द, कैमरा हम करके आप लोग को दिखाते हैं आप लोगों को। अभी देखिए दिस इज द, ये जो पोर्शन है ये दिस वन, ये वाला दिस वन, ये तो कमीर खुसरो है, और ये देखिए दिस वन इज ये दिस वन। इज इट क्लियर? सबके बुक में देख रहे हैं आप लोग? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ma'am. ये जो है ये मॉस्क, और ये जो है इसको इसने, हाँ अलाउद्दीन खलजी ने इसको बनवाया है, अलाउद्दीन खलजी ने इसको बनाया है। और ये देखिए ये आर्क शेप का बना हुआ है, आर्क शेप का, ये इन लोगों का इंडो इस्लामिक। और ये जो है लगता है कि जैसे, और ये दरवाजा का जो डिजाइन है, ऑल दीज आर इंडो इस्लामिक। ये ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग यस भी बोला करिए तो हमको लगेगा कि हाँ यस चिल्ड्रन आर अंडरस्टैंडिंग। और आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो हमको लगता है कि यस हमको, मैंने जो बताया बच्चों ने पता नहीं समझा या नहीं समझा। मैम मीडिया द मेनस्टे का क्वेश्चन आंसर मैम आप भेजी नहीं अभी तक? भेज देंगे, अभी तो बस सब कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर ही तो करना है। We will do the question answer। आप लोग को सब, हाँ बोलिए। मैम कुतुब मीनार के पीछे बहुत बड़ा फैक्ट भी है। बहुत बड़ा
फैक्ट है बताइए। मैम। अच्छा, कुतुब मीनार का 22 जून को उसका शैडो नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा, क्यों नहीं दिखता है? कुछ नहीं मैम, मैम क्योंकि उस दिन सन एकदम हाँ हाँ मैम मैम सन उसके उसके पीछे ओवरहेड साइंटिफिक होता है रीजन मैम, होगा। इसलिए उसका शैडो मैम नहीं दिखता। सन उसके ओवरहेड एकदम होता है, उसी के लिए कुतुब मीनार का शैडो नहीं दिखाई दे पाता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इंफॉर्मेशन। और हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन मैम शशांक शेखर। वेरी गुड, शशांक शेखर, बहुत बढ़िया। डू यू नो, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एंड बिल्ट अलाई दरवाजा नियर इट। दिस इज अ वेरी डेकोरेटिव एंड इंप्रेसिव गेटवे विथ एन आर्क। आर्क तो आप लोग को बता दिए। डू यू नो, Khalji wanted to build a minar in front of Qutub Minar, which was to be double its height, but he could not fulfill his dream as he died at a young age. बहुत पहले ही मर गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक मीनार बनाना चाहता था कुतुब मीनार के आगे। दिस इनकम्प्लीट मीनार कैन बी सीन इवन टुडे। ये आज भी दिखाई देता है क्योंकि वो उसको कंप्लीट नहीं करवा पाया। समझ में बात आ गई? उसके बाद है पेज नंबर 106। नाउ पेज नंबर 106। तुगलक फाउंडेड many new cities. फिरोज शाह कोटाला अभी कहाँ है? फिरोज शाह कोटाला किस लिए फेमस है? कोई बताएंगे? बताएंगे कोई? मैम प्लीज रिपीट योर व्हाई द फिरोज शाह कोटला इज फेमस? बताइए। कोई बताएंगे? एनीवन विल? मैम वो दिल्ली के सुल्तान थे। फिरोज शाह कोटला इज क्रिकेट ग्राउंड। दिल्ली का जो फेमस क्रिकेट ग्राउंड था दिल्ली का उसका नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, लेकिन अब उसका नेम चेंज हो चुका है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नेम चेंज हो चुका है, अब इसका नेम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। यस, नाउ इट्स नेम हैज बीन चेंज, अरुण जेटली स्टेडियम इसका नेम हो गया। मैम डू यू नो में लिखा है मैम खालजी वांटेड टू बिल्ड ए मीनार, तो मैम जलाउद्दीन खालजी भी और अलाउद्दीन खालजी, मैम यहाँ किसका बात कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि कह रहा बहुत कम एज में मरा, तो अलाउद्दीन खिलजी ही कम एज में मरा था। किसका माइक कौन है? प्रतीक झा, प्रतीक झा म्यूट योरसेल्फ। सुनता ही नहीं। Children, do not listen. Okay, now the famous, समझ में आ गया फिरोज शाह कोटला ग्राउंड क्यों है? फिरोज शाह कोटला अब क्या था? क्रिकेट स्टेडियम था दिल्ली का, और अब इसका नेम चेंज हो गया है और इट्स नेम इज नाउ, इसका नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। यस, अरुण जेटली स्टेडियम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इंफॉर्मेशन। द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक इज इन गियासुद्दीन तुगलक टॉम। मतलब तुगलक ने जो गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा, टॉम का मतलब होता है मकबरा, जहाँ की उसके मरने के बाद उसको मतलब दफनाया जाता है। इट इज ऑक्टोगन, 8 साइड का है। ऑक्टोगन मतलब 8 साइड का है इन शेप। इट इज इन फ्रंट ऑफ तुगलकाबाद फॉर द फोर्ट इन साउथ दिल्ली। अब तुगलकाबाद का जो किला है मतलब साउथ दिल्ली में, उसी के सामने है, और मेहरौली ओखला रोड पर है, मेहरौली और ओखला रोड पर है। तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली, देखिए आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है तुगलकाबाद फोर्ट का। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। देख रहे हैं? मैम ये जो बना हुआ है मैम ब्रिक्स का, मैम वही है ये फोर्ट? हाँ, तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली वही है। यस, और किसी का कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। Lodi Road and Lodi Garden in Delhi were made by the Lodhis, the last dynasty of Delhi Sultanate. क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत है? चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। तो कल टुमारो एक रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है? सारे लोगों को पहले ही बता देते हैं, स्नैप पे तो हम डालेंगे ही,
लर्न लेसन 13 फॉर द रिवीजन टेस्ट। इन्हीं को और कोई क्वेरी करना है इसमें से तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो मैम, एक क्वेश्चन है। यस क्वेश्चन। मैम, खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी मैम अपने आर्मी के सोल्जर्स मैम कुछ मैम फूलिया और दाग करता था मैम, वो क्यों? वो इसलिए कि कोई चेंज नहीं। देखिए अलाउद्दीन खलजी हुलिया और दाग इसलिए कि मतलब कोई उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट दूसरा ना आ जाए। और ये आपके बुक में देखिए दिया हुआ है, ये क्लियर है, लेकिन आपको फिर भी हम एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर है 99। सारे लोग पेज नंबर 99 में चले जाइए, ठीक है। और सेकेंड पैराग्राफ, अलाउद्दीन खलजी का सेकेंड पैराग्राफ, टू सेफ गार्ड हिज सल्तनत। देख रहे हैं आप लोग, मिल गया सबको वर्ड? यस मैम। हाँ, फ्रॉम द इन्वेजन मतलब अटैक से बचाने के लिए, बाहरी लोगों से अटैक से। ही हैड ए वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। उसके पास एकदम बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग दिया हुआ कि मतलब किसी तरह का लड़ाई लड़ सकते हैं। वेल इक्विप्ड मतलब सब तरह का हथियार उनके पास था। ही केप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर हुलिया एंड दाग टू अवॉइड एनी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसके बदले कोई और ना ले। समझ में आ गया? वही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कि कंट्रोल की आर्मी मैन अगर धोखा ना दे, इसीलिए हुलिया और दाग रखते थे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, वेरी गुड। नाउ होमवर्क क्या है? कोई बच्चा हमको रिपीट करेगा द होमवर्क? एनी चाइल्ड? रिवीजन लेसन 13। Revision of lesson 13. Learn and revise lesson 13. Revise and learn lesson 13. और क्यों 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 वाई? और For tomorrow revision test. For tomorrow revision test. For tomorrow revision बहुत test. बढ़िया, वेरी गुड। ओके।